ملک میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا مہینہ آ گیا۔ فرزندان توحید نے پہلا روزہ رکھ لیا۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری، گھروں اور ہوٹلوں میں انواع اقسام کے پکوان تیار کیے گئے۔ سحری کے لیے اشیاء خورنوش کی خریداری، کسی نے پائے خریدے تو کسی نے نہاری۔ دودھ اور لسی کی دکانوں پر بھی رش، شہریوں نے لسی، دہی، حلوہ پوری اور پراٹھوں کے خوب مزے اڑائے۔ پہلی سحری پر بازاروں میں کھانے پینے کی دکانوں پر رش رہا۔ سحری کے بعد ملک بھر کی مساجد میں شہری نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امنڈ آئے۔ مسلمان رب کائنات کے حضور سربہ بسجود ہوئے۔ خیر و عافیت اور رحمتوں، پاکستان کے استحکام و ترقی کے لیے دعائیں۔ حکومت کا ملک بھر میں سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان۔ سوئی صدرن اور ناردرن نے بھی ماہ رمضان میں گیس کی فراہمی کے اوقات کار جاری کر دیے۔ ماہ رمضان کے دوران بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں آج اور کل شدید بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاعات سے بارشوں کی پیش گوئی۔ مریم میں برفباری کا امکان۔ کوئٹہ، پشین، مستونگ، چمن میں بھی بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ 20 ارب روپے کا رمضان پیکیج، 40 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری یوٹیلیٹی سٹور سے جان چھوٹی، اب نہ قطاریں لگیں گی نہ کوئی اور مسائل ہوں گے۔ یہ انتہائی شفاف اور فعال نظام آیا ہے، اس میں ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن کا کوئی شبہ نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن تھی، پاکستان کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا۔ اب ہر مستحق خاندان کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5000 روپے فی گھرانہ دیے جائیں گے۔ رمضان پیکیج پورے پاکستان کے لیے بلا تفریق متعارف کروایا۔ کراچی سے گلگت تک تمام شہروں کے مستحق خاندانوں کے اس پیکیج میں شامل کیا گیا ہے۔ کھربوں کے محصولات زر التوا ہیں، ہم سب نکلوائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان صبر، استقامت، ہمدردی، مساوات، اتحاد اور یگانیت کا درس دیتا ہے۔ رمضان تقوی، اخلاص، قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ رمضان میں غربا، مساکین کی مدد کریں، احسار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و احسار ہے۔ ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے سکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس غریبوں اور محتاجوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں ظلم اور جبر کے شکار لاکھوں فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ وقت ہے ہم امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط کریں، باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ نہیں چاہتا سخت ترین تربیت سپاہی کو پیشہ ورانہ ترقی کا سنگ میل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں، جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں متعین خصوصیت کے طور پر تربیتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ آرمی چیف کا بہاولپور کینٹونمنٹ کا دورہ اور بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں، تربیت کے امور پر بریفنگ لی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے غیر متزلزل عزم، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، آنوسٹا چولستان اور مربوط جنگی سیمولیٹر کا بھی افتتاح کیا گیا، جبکہ CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں مختلف یونیورسٹیز کے طلباء سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے طلباء کو تعلیمی معیار کے فروغ کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ طلباء وہ مہارتیں حاصل کریں جو قومی ترقی میں معقول انداز میں حصہ ڈالنے کے لیے ضروری۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس میں محکمہ پروسیکیوشن کا پولیس انویسٹیگیشن پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کیس کے تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ کہا، ارمغان کے خلاف درج 4 مقدمات میں بھی اب تک پیش رفت ہوئی ہے، رپورٹ جمع کروائی جائے گی، جبکہ بتایا جائے کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، DNA اور فنگر پرنٹس وغیرہ کا فورینزک شروع ہوا ہے یا نہیں۔ DIG مقدس حیدر نے کہا کہ کیس کی تفتیش میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کرپٹو کے معاملے پر FIA تحقیقات کرے گی۔ ملزم ارمغان کے ملازمین کے بیانات ریکارڈ ہو چکے۔ جس دن ہم نے چھاپہ مارا اس سے 2 ماہ پہلے تک ارمغان کے پاس گارڈز ہوتے تھے۔ منشیات اور منی لانڈرنگ سمیت دیگر سائبر کرائم میں ملوث ہونے کے انکشافات کے بعد تحقیقاتی ٹیم کا DG اینٹی نارکوٹکس کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر کیس میں پورا کام ہو گیا تو بڑے نام بے نقاب ہوں گے، منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔
एग्जीक्यूटिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर हैं। जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखूंगा। बैरून मुल्क से 32 इक़साम की मंशियात दरामद की जा रही हैं। नई नस्ल को नशे की लत में डाला जा रहा है। गवर्नर हाउस में इंसदाद मंशियात से मुतालिक सेल कायम कर रहा हूँ। डंपर हादसात में जान बहक होने वालों के अहल खाना को एक एक प्लॉट दूंगा। गवर्नर हाउस में रमजानुल मुबारक पर खुसूसी एहतमाम किया है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को अफ्तार डिनर दिया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत या निज़ाम के लिए खतरा नहीं समझते। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए बेचैनी या बेताबी नहीं है। बानी पिचाई की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात का खेल तमाशे के तौर पर नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी निज़ाम को दरहम बरहम नहीं रखना चाहती। पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर ज़रूर अमल होना चाहिए। कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर दूर होने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का पहला दौर भी ज़लज़ला अंगेज़ था। अमरीकी सदर के हालिया इक़दामात की आलमी पज़ीराई नहीं हो रही। ट्रंप की क़यादत में अमरीका आलमी तन्हाई की तरफ जा रहा है। हुकूमत अवामी मैंडेट नहीं रखती। अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में मईशत की हालत ठीक नहीं। उल्टी सीधी बातें करके हुकूमत आवाम को धोखा नहीं दे सकती। कोशिश है कि अपोजिशन जमातों में एक सोच पर इत्तेफाक पैदा हो। आज कौमी क़यादत को कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। अपोजिशन हमेशा सड़कों पर तहरीक नहीं चलाती। तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है। मेरा मशवरा है पीटीआई सड़कों की सियासत से गुरेज करे। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत बानी पीटीआई को है। अपोजिशन अलायंस बना तो बुनियादी उसूलों पर ही बनेगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा 505 मिलियन रुपए की लागत से मंसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरियम नवाज ने कहा कि 1 साल में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। मॉल रोड पर मौजूद दुकानों और इमारतों को कदीमी तामीराती अंदाज में बहाल किया जाएगा। मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सियाहती सहूलियात का मरकज बनाना है। म्यार पर समझौता नहीं होगा। माजी की गलत पॉलिसियों से सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। वज़ीर आला KPK अल-यमीन गंडापुर कहते हैं जम अजला में सरकारी मुलाजमतों पर सिर्फ मुकामी लोग ही भर्ती होंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमने सूबे और जम अजला के हुकूक के हुसूल पर भरपूर तवज्जो दी। समुंदर पार खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को भी सेहत कार्ड दे रहे हैं। पन बिजली के मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे सूबे के 2020 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। हम सस्ती बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहे हैं। मौजूदा आबादी के हिसाब से NFC में सूबे को 250 अरब सालाना मिल रहे हैं। अगर ये मसला जल्द हल ना किया गया तो हम अदालत से रुजू करेंगे। चोरी छुपाने के लिए हुकूमत काबीना की तादाद बढ़ा रही है। नईम हैदर पंचौता की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा हुकूमत जितनी कोशिशें कर ले मैंडेट चोरी को छुपाया नहीं जा सकता। बानी पिचाई कह रहे हैं कि किसी के डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। बानी पिचाई अदलिया के जरिए रिहाई चाहते हैं। बानी पिचाई ने कभी किसी पर सियासी मुकदमा नहीं बनाया। कौम इनसे हिसाब मांगती है तो कहते हैं कि मुकदमात बनाए गए। अपनी चोरी छुपाने के लिए इन लोगों ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बानी पिचाई ने अमेरिका के खिलाफ नारा लगाकर मकबूलियत हासिल कर ली। खिलदास कोहिस्तानी की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा बानी पिचाई कल अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, आज इनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है कि यूक्रेन के मामले पर हम न्यूट्रल हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले करने में आज़ाद है। बानी पिचाई को रिहाई अदलिया के जरिए ही मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल ना करने का फैसला। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। कहा आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। नए मंसूबों की पहले से CDWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे
तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगले माली साल के लिए PSDP बजट का साइज भी कम किया जाएगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हसन का एतराफ। पाकिस्तान के साथ CPF के तहत $20 अरब के मुआहदे का ऐलान। कहा, फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मंसूबे का आगाज 2026 से होगा। माशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया है। ये वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी का अहम लम्हा है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। ये मंसूबे आलमी बैंक की तरजीहात से बिल्कुल हम आहंग हैं। FBI गुज़िश्ता माह भी टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माह फरवरी के दौरान 133 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजमूई तौर पर पहले 8 माह में टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए हो गया है। FBI ने माह फरवरी के दौरान 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर डिवीजन के सदूर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर में ना बैठें, पार्टी वर्कर्स के पास जाकर मसाइल हल करें। मैं गवर्नर हाउस में बैठने के लिए गवर्नर नहीं बना। पंजाब की हर गली और मोहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाऊंगा। तमाम नाराज कारकुनों के गिले शिकवे दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूंगा। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, कैनाल्स भी नहीं बनने देंगे। प्रोपेगेंडा करके पीपल्स पार्टी को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। शर्जील इनाम मेमन का सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ रिश्ता सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होता। हमारा आवाम के साथ जीने और मरने का रिश्ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जरूर वजीर आजम बनेंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा कि 2 लाख सोलर होम सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शतरंज की बाजी हार गए हैं, जबकि मुराद अली शाह को अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज की चैंपियन महक मकबूल ने शिकस्त दे दी। महक मकबूल ने वजीर आला सिंध को 15 मोस्ट से शिकस्त दे दी है। इस मौके पर वजीर तालीम सिंध सरदार शाह, वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर, आगा फाउंडेशन के सुल्तान और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय भी मौजूद थे। वजीर आला की महक मकबूल और दीगर तलबा को मुबारकबाद। कहा, सिंध के तलबा ने शतरंज मुकाबलों में धूम मचा दी। सिंध के सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों का शतरंज में कौमी सतह पर कामयाबी हासिल करना